A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, now we are going to start the topic motion under restoring force. Topic हमारा है motion under restoring force. You may say, ये सवाल इस तरह से आता है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी अटैच्ड विद वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग एग्जीक्यूटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन. रिस्टोरिंग फोर्स के हवाले से अगर हम देखें यहाँ पे तो बेटा सबसे पहले हम अगर करें कंसीडर a body of mass m, a body of mass m attached to the one end of the spring, attached to the one end of a spring, one end of the spring of spring constant K. Consider a body of the mass m attached to the one end of the spring constant K. यानी हमने क्या किया, एक बॉडी को अटैच किया और इस पूरे को हमने क्या किया, placed on a horizontal smooth surface as shown in the figure. Dear students, consider a body of the mass m attached to the end of the spring constant K placed on a horizontal smooth surface as shown in the figure. Look at this one. अगर यहाँ पे आप फिगर की बात करें, let's suppose this one is horizontal surface. A spring, one end of the spring is attached with this rigid support. This one is the rigid support. This one is the rigid support. One end is attached with rigid support, and this one is the body. Its mass is, let's suppose, m. It's placed on this horizontal surface. You know that we have already done. ये जो body है जहाँ पे rest में है, this is known as the equilibrium position. इसको किससे हम show करते हैं? O से. So what we did, consider a body of the mass m attached with the one end of the spring constant. इसका spring constant क्या है? K. And the other end of the spring is attached with the rigid support and placed on a horizontal smooth surface as shown in the figure. When a body is pulled, let's suppose when a body is pulled from its mean position to the extreme position, let's suppose this one is extreme position x, and on that side this one is extreme position x dash. You may pull this body or you may compress this body. So these are the two extreme positions. क्या किया हमने? When a body is pulled, from its equilibrium position to an extreme position, let x dash, this one is x dash, if this one is an extreme position, then
body does some work, then the body does some work and it is stored as a potential energy at extreme position x dash. So remember one thing, what we did, when this body is pulled from its mean position or the equilibrium position, right now this body is at the mean position, when I pull it, and when this body is pulled from that position to that means this displacement is being done. You may say this one is the amplitude because the displacement between the mean position and the extreme position is amplitude. You may say x naught. This one is the amplitude, or you may say the displacement as well. When you release it, the body will not stay at this position, but it will start to move towards the mean position, because in to and fro motion the body always move about a fixed point. So body will start to move, you know. To bring this body back to this mean position, we need a force. That force is known as restoring force. तो बेटा अगर यहाँ पे आप देखें, when we are going to restoring force की definition समझ में आ गई. What is the restoring force? कि जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होती है, उसको फोर्स अप्लाई करने के बाद जब रिलीज करते हो तो उसको वो मीन पोजीशन की तरफ जो फोर्स बैक लेकर आती है उसको क्या कहते हैं, हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं. सो हेंस द फोर्स इज कॉल्ड द रिस्टोरिंग फोर्स विच इज स्टोर्ड इन इट एट एज ए पोटेंशियल एनर्जी. अब अगर यहां पे आप देखें तो आपने देखा कि लेट सपोज that was the spring, this one is the mean position O, and this one is extreme position, and this one is the displacement, let's suppose x or x naught. So when you release it, what happens? The force which brings it back, that one is the restoring force. We have already know that the restoring force is given by what? F is equal to minus kx. Let's suppose this is equation 1. As soon as the body is being released, acceleration is going to decrease, but the velocity is going to increase. When it reach at the mean position, यहाँ पे देखिए एक बात जो समझने की हुई है, स्टूडेंट्स के जहन में आता है, सर जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज कैसे हो रही है? Acceleration and force are directly proportional. So when you apply the force maximally over here, it has the acceleration at that point. That one is a maximum acceleration. Acceleration is a maximum at extreme position. That's the maximum. You know why? When you release it, it will start to move towards the mean position. At the extreme position, now the body was in the rest. That's why velocity is 0. As soon as it started to move, velocity is going to increase from 0 to 1, 2, 3, 4, and when it reach at the mean position, the velocity will become maximum. At this point, the velocity will become maximum, and its acceleration will be equal to 0. बड़ी अजीब सी बात हो रही है सर, ये कैसे? जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं, ऐसा नहीं है. फर्स्ट सेकंड में सपोज करें, लेट सपोज अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं. यहां से जब बॉडी मूव करती है, लेट सपोज फर्स्ट सेकंड में इट कवर्स 4 मीटर, सेकंड में इट कवर्स 7 मीटर. सो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई आपके पास? वी आई क्या हो गई? 4 मीटर पर सेकंड. फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 7 मीटर पर सेकंड. व्हाट इज द चेंज इन अ वेलोसिटी?
per unit time. That means that would be 3 meter per second. This is the change in a velocity. Means acceleration कितनी हो गई? 3 meter per second square. नेक्स्ट में देखिए 4 से इंक्रीज होकर वेलोसिटी क्या हो गई है? 7. अब नेक्स्ट सेकंड में, अब थर्ड सेकंड में जब हम जा रहे हैं, सेकंड से जंप कर रहे हैं थर्ड सेकंड में, लेट्स सपोज वेलोसिटी यहां पे सेकंड में क्या थी? 7. अब आपके पास लेट सपोज हो गई 9 मीटर. दैट मीन्स फ्रॉम सेकंड टू थर्ड सेकंड the change in a velocity is 2 meter per second. Acceleration is decreased. पहले कितनी थी? 3 मीटर पर सेकंड. अब सेकंड से, यानी पहले यहाँ से यहाँ पर आए, ये फर्स्ट सेकंड था, यहाँ पे क्या था? ये भी 1 सेकंड. और अब यहाँ पे जब यहाँ से यहाँ पे पहुँच रहे हैं तो यहाँ पे कितने, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले हमने क्या कहा था? हाउ मच? यहाँ पे स्पीड थी 4 मीटर पर सेकंड. यहाँ पे क्या थी? 7 मीटर पर सेकंड. यहाँ पे आपके पास कितनी है? 9 मीटर पर सेकंड. तो आप अगर एक बात देखें, वेलोसिटी पहले 4 मीटर, फिर 7, फिर 9, इट्स गोइंग टू इंक्रीज. वेलोसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन, यहाँ पे डिफरेंस कितना था? यानी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. लेकिन 7 से 9 जा रहे हैं तो डिफरेंस कितना हो रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. पहले कितना था? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इन द सेकंड अटेम्प्ट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Is it going to decrease? Yeah, acceleration is going to increase, but the velocity is increasing. 4 meter per second, 7 meter per second, 9 meter per second. In this way, ये शर्त नहीं होती कि जब भी velocity increase होगी तभी जो है acceleration भी increase होगी. Acceleration जो है वो that one is a change in velocity. Change in velocity कम होती जा रही है, लेकिन हर सेकंड में velocity बजाते खुद जो वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. सो ओवर हियर व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, दैट मीन्स कि जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ ट्रैवल करती है तो उस वक्त उसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज होती जाती है और वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है. व्हेन इट रीच एट द मिनिमम एट द मीन पोजीशन, व्हेन द देयर एट दैट पॉइंट वेलोसिटी इज अ मैक्सिमम बट द एक्सेलरेशन इज जीरो. आपको ये भी पता होगा, एक्सेलरेशन जहाँ जीरो होती है दैट मीन्स फोर्स इज आल्सो इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट वन, कि जहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन उसी को कहते हैं जहां पे एक्सटर्नल फोर्स ना हो. दैट मीन्स एट द मीन पोजीशन velocity is maximum during the simple harmonic motion. Force is zero, acceleration is also zero. But as soon as when the body reach at the mean position, हमारे ज़हन में पता है बेटा क्या आता है? ये आता है कि भाई जब वहां पे फोर्स नहीं है तो बॉडी शुड हैव टू कम टू द रेस्ट. लेकिन नहीं होता, रेस्ट में नहीं आ रही है. रेस्ट में ना आने का सबब क्या है? रेस्ट में ना आने का सबब ये है कि ड्यू टू द इनर्शिया इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन ऑन ईदर साइड. वो दूसरे साइड पे मूव करना शुरू कर देती है. अब जैसे ही ये इस तरफ मूव करती है, अवे जाती है, रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये इसको पुल करती है. बॉडी जैसे देखिए, जब मोशन और फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है. जब मोशन और फोर्स दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है. अब बॉडी जैसे ही जाती है, मोशन की डायरेक्शन क्या है? इस एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ है, ऐसे ही जा रही है. फोर्स कहाँ है? अपोजिट डायरेक्शन. वेलोसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज. जब ये इस एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी पहुंच जाएगी, अगेन आपके पास वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी? मैक्सिमम. क्यों? कि यहां तक मैक्सिमम फोर्स वो अप्लाई करता है. So in this way, this will keep on vibrating from x o x dash o x. It will continue its motion along the x o x dash. So it means its motion is a periodic motion, or you may say it's a vibratory motion. पहली कंडीशन तो हो गई, vibratory motion है. दूसरा, और अब आपको पता है जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है. So when the acceleration is being produced, so according to Newton's law, the force which produces the acceleration, F is equal to what? ma. This is equation number 2. So when you compare these two equations, we have ma is equal to minus kx
So you can write here A is equal to minus K upon M into X. In this equation, K is a spring constant, mass will remain the constant as well. So you may write here, replace this one. So we have acceleration is equal to minus, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, constant into x. So to remove this constant, अगर जब remove करेंगे A is proportional to minus x. Look at that relation. Is it the characteristic of the simple harmonic motion? कि जिसमें एक्सीलरेशन क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसी डिस्प्लेसमेंट से. नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? इट्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. और आप पहले ही इसमें बता चुके हैं कि इसका मोशन क्या है, पीरियडिक है, वाइब्रेटरी मोशन है, जिसमें ये तीन चीजें एटलीस्ट पाई जाए. क्या कि बॉडी का मोशन वाइब्रेटरी है, इट्स मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स. और तीसरी बात हमने क्या कही कि जब एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट से और उसकी डायरेक्शन हमेशा काउंट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, दैट मींस in a spring mass system where a body vibrates, its motion is a simple harmonic motion. Why? Because its motion is under the restoring force. Number 2 point, it's periodic, it performs the periodic motion. Its acceleration is directly proportional to the displacement and it is always directed towards mean position. अगर आपसे कहा जाए, अब इसमें से जो हमने बातें की हैं उसमें से एक तो रिलेशन हमने कौन सा मालूम कर लिया बेटा, अब हम इसको सम अप करते हैं. अभी जो कुछ हमने जो टॉपिक किया है इसमें से देखें. सबसे पहली बात, एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी अटैच्ड टू द एंड ऑफ द स्प्रिंग परफॉर्म द सिंपल हार्मोनिक मोशन. उसका अगर आपसे कहा जाए फार्मूला क्या होगा, तो आपके पास फार्मूला इसका हो जाएगा A इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स. सेकेंड पॉइंट की तरफ जा रहे हैं. एक्सीलरेशन मैक्सिमम कहां पे होती है? जस्ट यू टोल्ड मैक्सिमम एक्सीलरेशन का फार्मूला हम मालूम करने जा रहे हैं. एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन. एट एक्सट्रीम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, यू नो दैट. देयरफॉर अगर यहां पे लिखूं, ये जो एक्सीलरेशन मैक्सिमम कहां पर होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पर. तो यहां की फार्मूला इसका होता क्या है? माइनस, क्या फार्मूला था? माइनस के अपॉन एम. ये तो कांस्टेंट है, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स नॉट. सो दिस इज द फार्मूला फॉर, यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या हो? माइनस के अपॉन एम एक्स नॉट, वेयर एक्स नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्प्रिंग. अगर आपसे कहा जाए एट, थर्ड फार्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं, इसका थर्ड फार्मूला देखो बेटा, एट मीन पोजीशन. हमें पता है एट मीन पोजीशन एक्स, अभी हमने लिखा भी था, क्या था? एक्सेलरेशन है 0. कैसे हुई पता है? यानी मैक्सिमम भी कह सकते हैं, 0 भी कह सकते हैं. एक्सेलरेशन इज मिनिमम या 0 कहां पर होती है? वहां जहां पे कहां हुआ? मीन पोजीशन. मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0. तो अगर आपका इसका फार्मूला लिखें, एक्सेलरेशन का फार्मूला, जो जनरल फार्मूला आपके पास क्या था, ये देखिए, माइनस के अपॉन एम, क्या लिखा हो? एक्स. एक्स किसके बराबर होता है? 0 के. तो यहाँ पे अगर 0 देंगे तो ये क्या कहलाएगी? मिनिमम एक्सेलरेशन. सो मिनिमम एक्सेलरेशन इज माइनस के अपॉन एम इंटू 0 करेंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0. सो दैट वाज द एक्सेलरेशन. सो इन दिस टॉपिक वी हैव कैलकुलेटेड सम पॉइंट्स. पहली बात कि तो हमारा टॉपिक है, बेसिकली हम जो है ये प्रूव करना चाह रहे थे कि जब किसी बॉडी को स्प्रिंग के साथ अटैच किया जाए, क्या उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है. वी हैव प्रूव दिस वन. उसके बाद हमने कहा कि एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका फार्मूला क्या होगा? सो ए इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स. उसके बाद हमने कहा कि ये जो एक्सीलरेशन है मैक्सिमम कहां पर होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पे, चाहे एक्स पे या एक्स डैश पे. उसका फार्मूला क्या है? इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एक्स नॉट, वेयर एक्स नॉट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. मिनिमम क्या होती है? 0 होती है. कहां पर होती है? कहां पर होती है मिनिमम? 0 मीन पोजीशन पर. मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0. तो जनरलाइज करें अगर इसको, अब मीन पोजीशन के ऊपर फोर्स, अप्लाइड फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी मैक्सिमम, और वहां पे एक ही एनर्जी होती है. वो कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, जो मैक्सिमम होती है. एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर हम देखें, एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम, वेलोसिटी 0, टोटल एनर्जी एक ही होती है. कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी. आप कह सकते हैं
मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? काइनेटिक एनर्जी में से वेलोसिटी जीरो है तो ज़ाहिर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? जीरो होगी। सो दैट वाज आवर टॉपिक। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।